ओके, तो अब नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं, डेट इज चैप्टर नंबर 5 विच इज प्राइस एंड इन्फ्लेशन। चैप्टर नंबर 3 हमने देखा एक्सटर्नल सेक्टर। चैप्टर नंबर 4 डेट इज मनी एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। चैप्टर नंबर 5 डेट इज प्राइस एंड इन्फ्लेशन। आउटलाइन क्या है पूरे टॉपिक का? इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन इज प्राइस सर्ज, राइज इन प्राइस। इन्फ्लेशन क्यों अकर होता है? रीजन क्या है इन्फ्लेशन का? हाउ टू चेक इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन के टर्म्स क्या हैं? हाइपर इन्फ्लेशन, स्क्यू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होता है मार्केट के ऊपर? इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं? सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, पीपीआई, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एंड रीजन फॉर डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड। तो ये पूरा आउटलाइन है चैप्टर का। एक वीडियो है इन्फ्लेशन रिलेटेड, इसको हम देख लेते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। This line tracks the rise and fall of inflation, the rate at which prices increase across the economy. For years, central banks like America's Federal Reserve thought they understood why inflation fluctuated and how to keep it steady. Central banks felt that as long as they could keep inflation on an even keel, it was probably a sign that they were also keeping the economy on an even keel. But for the past decade, inflation hasn't played by the rules. Despite high employment before the pandemic in places like America, which normally causes inflation to rise, it's been mysteriously low across much of the rich world, and central banks seem unable to revive it. Low inflation means that central banks are less powerful than we thought, or less powerful than we hoped. This is particularly worrying as the world faces a period of profound economic uncertainty, making it more important than ever to solve the great inflation mystery and repair the global economy. Inflation is when prices rise across the economy. It helps explain why a Big Mac cost less than $3 20 years ago, but is nearer $6 today. The traditional explanation is too much money chasing too few goods. According to this logic, if a central bank prints too much money or makes it very easy to borrow money by keeping interest rates low, then prices will rise. Events like wars, which cause a shortage of goods, can also increase prices. So a little bit of inflation doesn't really hurt anybody, but when inflation is high and volatile, and when it's unexpected, it can do a lot of damage to the way a capitalist system runs. It can make planning very difficult. It can make borrowing money and lending money very difficult because you don't know how much you're going to get back. And so in countries that suffer high inflation, you see a breakdown in long-term borrowing. To avoid extremes of inflation, most central banks try to keep it at around 2%. To stop inflation rising, they can increase interest rates, making it more expensive for everyone to borrow money, which slows the economy and lowers inflation. Predicting when central banks need to intervene to curb inflation used to be pretty straightforward, thanks in part to observations published in 1958 by an economist from New Zealand called A.W. Phillips. He was a tremendously resourceful man. As a school child, for example, he rebuilt a truck from scratch and drove it himself to school, taking his friends along with him. He was also a prisoner of war during the Second World War and famously created some secret radios and tea heaters. Phillips observed that wages in Britain tended to rise faster if employment was high. He plotted the relationship between salary rates of change and unemployment levels on a graph to produce what is known as the Phillips curve. The Phillips curve was used by central banks to help predict inflation, as if lots of people were in work and wages were rising, it tended to lead to price increases. If unemployment is low and wages are therefore rising faster, that puts upward pressure on costs, and firms will feel confident passing those higher costs on into higher prices because the economy is presumably doing quite well. The opposite is also true. When the economy is weak and unemployment is high, wages stop rising, and firms can't raise prices much without losing customers.
This theory was pushed to the extreme in the 1970s. A spike in the price of oil and overspending to fund the Vietnam War meant that inflation was rising rapidly in America. So Paul Volcker, the head of the Federal Reserve, raised interest rates to a record 20%. This huge hike in interest was known as the Volcker shock and brought inflation down by the 1980s. Leaders are increasingly speaking out about the credit crunch policies of Mr. Volcker's Federal Reserve. Created mass unemployment in the US, but it did ultimately have the effect of curbing inflation, and as a result, inflation did come down from double digits. But the idea that ups and downs in employment explained changes in inflation didn't last, giving rise to one of the great economic conundrums of the modern world. The signs were everywhere, but now it's official, we are in a recession. We received yet another round of alarming employment figures, the worst in more than 30 years. The global financial crisis of 2007 to 2009 caused mass unemployment in America. But strangely, inflation didn't fall very far. And as the economy recovered and unemployment reached a 50-year low in America in 2019, inflation remained mysteriously low, baffling economists and politicians alike. Some economists declared that the Phillips curve was dead. I think a more mainstream view was that it was merely hibernating. This mystery of low inflation led to a radical rethink about what was causing prices to stagnate. One explanation is that central banks have kept inflation low for so long that people no longer expect inflation to rise, even in a jobs boom. And firms are more reluctant to raise their prices or wages if they don't expect anyone else to do the same. Another theory is that globalization has helped keep prices low because it's led to an influx of cheap imports. Central banks have run out of room to cope with globalization because interest rates have been so low since the global financial crisis. And so if you do get downward pressure on prices from, for example, manufactured imports from emerging economies, central banks don't anymore have the room to offset that by allowing other prices to rise faster. Other economists say that because firms didn't cut wages much during the financial crisis to protect worker morale, they didn't raise wages much during the recovery, and this slowed inflation. Pay and inflation would eventually rise, but it would take time. And before inflation had the chance to correct itself, the pandemic hit. But an unexpected outcome of the disruption caused by the pandemic might actually help raise inflation and get it back on track. Well, the US Senate has unanimously approved what is essentially $2 trillion of economic triage, lowering interest rates almost down to zero. The pandemic has led to far greater cooperation between central banks and governments. As central banks have printed money, governments have offered stimulus packages, ensuring that people are able to spend it. If governments can borrow and spend in the knowledge that they won't put upward pressure on interest rates because central banks will stop that from happening, then that should be quite a powerful stimulant to the economy. This cooperation could not only be enough to pick inflation up off the floor, it could also help repair the global economy. I'm Simon Cox, Emerging Markets Editor of The Economist. We've written a series of articles looking at the basics of economics and how thinking about that is evolving. You can read more at the link opposite. Thanks for watching. So, inflation को समझते हैं. Inflation means a rise in price. जैसे आप ये cup of coffee को देखो, in 1970 इसका था $0.25 इसका प्राइस था. In 2019 इसका प्राइस इंक्रीज होकर $1.59 हो गया. इसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है. फॉर सेम क्वांटिटी वी आर पेइंग मोर प्राइस. सो इन्फ्लेशन इज नथिंग बट ए प्राइस सर्ज फॉर ए फ्यू. यस अनिल, कुछ डाउट है आपको? So inflation is nothing but a price surge of is the same quantity of goods or services over the period of time. So inflation is a quantitative measure of rate at which average price of basket of selected goods or services in the economy increase over the period of time. तो a cup of coffee का example है.
इन्फ्लेशन क्यों इंक्रीज होता है? तो 3 रीजन है उसके पीछे इन्फ्लेशन के इंक्रीज होने का। एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, एंड थर्ड है बिल्ड इन इन्फ्लेशन। डिमांड पुल क्या हो जाता है कि हमारे पास सप्लाई या तो डिक्रीज हो रहा है या तो सप्लाई सेम है, बट डिमांड इंक्रीज हो रहा है, more people are seeking those good or services. So when demand of goods and services exceed the supply और supply remain stagnant, तो उसको demand pull inflation कहते हैं। तो यहाँ पे देखो कि एक शू है और ये सारे लोग लाइन लगा के खड़े हैं यहाँ पे। डिमांड इंक्रीज हुआ एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड इसका प्राइस इंक्रीज हो गया फ्रॉम $100 to $150। अभी आप मार्केट में देखो रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इन सब का प्राइस है इंक्रीज हो गया है मार्केट में बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डिमांड। दूसरा है कॉस्ट पुश, से मैं किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा हूं और यहाँ से रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो मुझे मैन्युफैक्चर गुड का प्राइस भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कब आता है? जब किसी गुड्स को मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं या किसी सर्विस को डेवलप कर रहा हूं, उसके लिए जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स से ऑफिस का रेंट है, गवर्नमेंट का टैक्सेशन है, लेबर का सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इंटरनेट बिल है। सो इसको हम रॉ मटेरियल है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस इंक्रीज हुआ तो मुझे भी इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि अभी ये वेंडर बलून को सेल कर रहा था $5 में, क्योंकि बलून के अंदर ये जो हीलियम फील करता था वो $10 पर केजी है। से 1 केजी में 100 बलून को फिल करता होगा, लेकिन हीलियम विच वॉज यूज्ड एज अ गैस टू फिल बलून, इसका प्राइस इंक्रीज होकर $20 हो गया, डबल हो गया। तो इसने अपने बलून के प्राइस को भी डबल कर दिया। तो दिस इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, और जिसकी वजह से बलून का प्राइस इंक्रीज हुआ। सो व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज होगा। थर्ड है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ये कब अकर होता है? से अभी मैं कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मिस्टर ए इज वर्किंग इन कंपनी, अभी उसका सैलरी 10,000 है। सो आई एम ओके विथ दिस सैलरी। 2-3 साल के बाद मेरा मैरिज हो जाता है, मेरे घर में चाइल्ड आ जाता है, तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। तो मैं अपने कंपनी को कहूँगा, कंपनी मैनेजमेंट को, कि सर आप मेरे सैलरी को इंक्रीज करो, बिकॉज 10,000 में मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है मेरे अपने घर के सारे एक्सपेंसेस को फिल करना। जैसे जैसे मेरा एज होगा, मेरा एक्सपीरियंस होगा, तो मैं अपने लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए बहुत सारे गुड्स को परचेज करूंगा। पहले मैं घर का से काम खुद करता था, अब अपने घर में बाइक को मैं रखूंगा। पहले मैं 1 BHK के फ्लैट में रहता था, अब मैं 3 BHK के फ्लैट में रहूंगा। तो जैसे जैसे हम काम करने लगते हैं, लेबर काम करने लगता है, वो एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करता है, उसका सैलरी हमें इंक्रीज करना ही पड़ेगा। तो जब हम उसका वेजेस इंक्रीज करेंगे, तो वेजेस क्या है? ये भी तो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो प्राइस राइज होता है। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मोर डिमांड फॉर सेम लेवल ऑफ सप्लाई। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। और बिल्ड इन इन्फ्लेशन, जब वेजेस इंक्रीज हो जाते हैं और वो इन्फ्लेशन में रिजल्ट करेगा। नाउ डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर होता है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? सो डिमांड इंक्रीज ओवर सेम सप्लाई लेवल ऑफ सप्लाई, सप्लाई डिक्रीज ओवर सेम लेवल ऑफ डिमांड, और एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर लोगों के पास आ जाता है। तो ये दो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर क्या है? अभी मैं क्रोमा में जा रहा हूँ और मेरे पॉकेट में 5,000 रुपीज़ है। मैंने वहाँ पे एक टीवी देखा जिसका प्राइस है 30,000 रुपीज़। मेरे बजट के बाहर है, बिकॉज आई एम हैविंग ओनली 5,000 इन माई पॉकेट। टीवी है वो 30,000 का है, तो मैं अब इसको कैसे परचेज करूंगा? तो वहां पे कोई क्रेडिट कार्ड वाला आता है, वो कहता है कि सर हम आपको क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, 5,000 अभी आप पे कर दो और बाकी हर मंथ 2,000 का इंस्टॉलमेंट आप पे करना। या कोई फाइनेंस कंपनी आता है, जैसे बजाज फिंसरे या कोई फाइनेंस कंपनी आएगा, तो उसने मुझे क्या किया,
क्रेडिट दिया, मीन्स लोन दिया, और अब मैं परचेज करूंगा, तो क्रेडिट को हम कहते हैं ये आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करता है या एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर क्रिएट करता है। तो मेरे पास इनकम उतना ही है बट मैं ईएमआई में पे कर सकता हूँ, मुझे क्रेडिट मिला। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर होता है व्हेन सप्लाई इज स्टैग्नेंट, डिमांड इज इंक्रीजिंग, और व्हेन डिमांड स्टैग्नेंट है, उतना ही है, बट सप्लाई कम हो गया और एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर मार्केट में हमने इंक्रीज किया। नाउ इसको टैकल कैसे कर सकते हैं? तो पहला हम टैकल कर सकते हैं टैक्सेशन को इंक्रीज करके। जैसे कोई गुड है, इसका प्राइस 10,000 है, प्लस इसके ऊपर 20% हमने टैक्स इम्पोज किया है, तो 2,000 टैक्स हो गया, इसका टोटल प्राइस हो गया 12,000, टोटल प्राइस 12,000। अभी भी लोग इसको बहुत ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, तो लोगों को डिस्करेज करने के लिए कि वो कम से कम परचेज करें, मैं इसके ऊपर टैक्सेशन इंक्रीज करके इसको मैं कर दूंगा 50%। सो अब हो गया 5,000 टैक्स, तो नाउ 15,000 इसका प्राइस हो गया। सो लोग अब डिस्करेज हो जाएंगे, गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो गया। तो टैक्सेशन जब इंक्रीज करते हैं तो गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है और वो लोगों को डिस्करेज करता है परचेज करने के लिए। दूसरा, से मेरा अभी इनकम है डेट इज 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज में से मैं सेव करता हूँ 2,000, मैं इन्वेस्ट करता हूँ से 1,000, मैं टैक्स पे करता हूँ से 1,000। तो अब मेरे पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कितना बचा? टोटल इनकम, माय ग्रोस इनकम माइनस सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट माइनस टैक्सेशन, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मेरे पास 6,000 बचा। 6,000 में परचेज करूंगा। नाउ इमेजिन करो, गवर्नमेंट टैक्सेशन इंक्रीज कर देता है और गवर्नमेंट ने टैक्सेशन को इंक्रीज करके अब उसने 3,000 कर दिया। तो सेविंग 2,000, 1,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट 3,000, 3,000 टैक्सेशन 6,000, तो अब मेरा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम 4,000 हो जाएगा। तो गवर्नमेंट टैक्स जब इंक्रीज करेगा तो गुड्स का प्राइस भी इंक्रीज हो गया। सो ये एक तो हमें ये डिस्करेज कर रहा है, और नंबर 2 पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ये भी कम हो रहा है। दूसरा, गवर्नमेंट सब्सिडी डिक्रीज कर सकता है। अब सब्सिडी क्या है? पेट्रोल का प्राइस 150 रुपीज है मार्केट में, बट गवर्नमेंट इसके ऊपर 50 रुपीज सब्सिडी दे रहा है। सब्सिडी मीन्स गवर्नमेंट 50 रुपीज बियर कर रहा है, तो मार्केट प्राइस पेट्रोल का है 100 रुपीज। मैं पेट्रोल को परचेज कर रहा हूँ, अब गवर्नमेंट ने क्या किया? सब्सिडी को हटा दिया, तो अब पेट्रोल मार्केट में मिलेगा 150 रुपीज, तो मुझे डिस्करेज करेगा। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को अगर कम करना है तो सबसे पहले डिमांड ही कम करो। तो डिमांड कैसे कम होगा? प्राइस राइज करके या लोगों का इनकम कम करके। गुड्स एंड सर्विसेज जो शॉर्ट सप्लाई में है, इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे इंडिया में वेंटिलेटर कम है, इंडिया में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कम है, इसको हमने इंपोर्ट कर दिया। तो इंपोर्ट करने से सप्लाई का शॉर्टफॉल हमने कम कर दिया, तो जिसकी वजह से प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं। वेज रिवीजन कर सकते हैं, लोगों के सैलरी को ही रिड्यूस कर सकते हैं कि जब उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो परचेज कैसे करेंगे। और इंटरेस्ट रेट को लोन पे इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे पहले मैं 10,000 बैंक से लोन लेता था, तो मुझे 10% रेट पे लोन मिला, तो मुझे 11,000 पे करना पड़ा। अब मैं 10,000 लूंगा तो 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे 15,000 पे करना पड़ेगा। जब इंटरेस्ट रेट लोन का इंक्रीज कर लेते हैं तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन मार्केट में आ गया, या उसको कहते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, मीन्स लिक्विडिटी हमारा रिड्यूस हो गया। सो इंक्रीजिंग interest rate on loan. So this is how demand pull inflation can be tackled. दूसरा है cost push. Cost push means जो factor of production है उसका price increase हुआ, so overall final good का price increase हो गया. So cost push, that is increase in production cost,
रेंट, लेबर, रॉ मटेरियल, टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब का प्राइस इंक्रीज हो गया। ये कब होता है? जब मार्केट में मनी का फ्लो इंक्रीज हो जाता है। तो जब मार्केट में मनी का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, जैसे अभी मैंने अपना फ्लैट किसी को रेंट पे दिया है, तो मैं ऐसा कहूँगा कि देखो, अभी तक मैं आपको 5,000 रेंट पे देता था, अब आपको नेक्स्ट मंथ से 7,000 पे करना पड़ेगा। तो मैंने रेंट इंक्रीज कर दिया, गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर दिया, रॉ मटेरियल का जो मैन्युफैक्चरर है उसने प्राइस इंक्रीज कर दिया, लेबर ने अपने वेजेस को इंक्रीज कर दिए। तो जब मार्केट में मनी का फ्लो ज्यादा हो जाता है, तब कोस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। इसको कैसे हम कर सकते हैं? टैक्सेशन को कम कर सकते हैं, क्योंकि टैक्स एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। सब्सिडी को इंक्रीज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा प्राइस को बियर करें। वेज रिवीजन कर सकते हैं, हम लोगों के सैलरी को रिड्यूस कर सकते हैं। सैलरी को जब हम रिड्यूस करेंगे तो उनके पास कम मनी होगा, और जब कम मनी होगा तो वो कम इन्वेस्ट करेंगे। और दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि लेबर का जो वेजेस है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो उनके अगर वेजेस को इंक्रीज किया तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट ऑन लोन डिक्रीज कर सकते हैं, और हम लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करें, मार्केट के अंदर ज्यादा मनी को इन्फ्यूज करें। अब ज्यादा मनी को इन्फ्यूज करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा कि एक तो प्राइस इंक्रीज हुआ, तो अब लोगों का इनकम भी इंक्रीज हो गया और वो भी चीजों को ज्यादा परचेज करेंगे। तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि जो लेबर एसोसिएटेड हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, उनके प्राइस को, उनके वेजेस को कम करें, बट दूसरे लोगों के वेजेस को इंक्रीज करें जो कंज्यूम करता है। सो दिस इज हाउ डिमांड पुश, डिमांड पुल एंड कोस्ट पुश इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही रखते हैं, कुछ डाउट है तो आप पूछो।